Now 9. ठीक है? Saying आपकी और red color नजर आ रहा है? Look at me here. Here is the red beads. Saying, look, there are red beads. Now count these. Count these. Just red one. Just red one. 1, 2, 3, 4. Just red. 5. Say 5. Hussein, look here. 5. Then 1, 1. You have to do 1, 1. Count just 1, 1. 6, 7, 8. Say 8. Okay. You show this hand. 9. And this one is? This one. 10. How many beads? 10. 10. Look at me. There are 10 beads. Okay. Now, where is blue color? Very good. Hussein को किसका पता है? Yes. Okay. Hussein, now we are going to count blue beads. Okay. Okay. Start from this one. 1, 2. Say 2. Now look here. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अच्छा, हुसैन, आपको कहीं और ब्लू बीड्स नजर आ रहे? कहाँ? Just touch blue beads. Just touch blue beads. Sit straight. Blue beads. There are blue beads. Now count these. Let's count. 1. Say 1, 2. Look at the beads. 3, 4, 5 beads. ठीक है? Now 6, 7, 8, 9 and 10 beads. We have counted red beads and blue beads. Now sit straight, fold your arms. कल हम लोग और खेलेंगे भैया. We will make puzzle. ठीक है? कल हम लोग puzzle बनाएंगे. Okay? Now sit straight, fold your arms. ये अच्छा बच्चा है ना? Hussein, these are shapes. क्या है ये? Shapes. Say shapes. Shapes. Okay. Which shape is this? Square. This is blue color. Blue and square. Blue square. Square. Okay. Pick out yellow square. Very good. Now red square. And green square. That's green.
Great. Give me 5. High five. Okay. This shape is ये कौन सी शेप है उसे? कौन सी शेप है? कौन सी शेप? Triangle. Very good. This is triangle. Fold your arms. I give it to you. This is triangle. Do you need this? Do you need this? आपके लिए चाहिए? First of all, look at me. See this? Triangle. And which color is this? Blue. This is blue triangle. Blue triangle. Now put it on a table. Pick yellow triangle. Yellow triangle. Yellow triangle. Put it here. Here. Put yellow triangle here. Triangle. Which one is triangle? The same triangle कौन सा है से? This one is triangle. Yellow triangle. Put it here. Now, pick green triangle. Put it here. Pick red triangle. That's great. Now say which shape is this? Which shape is this? Shape circle. 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 This is red circle. Say red circle. Okay. Put this red circle on table. Okay. Pick green circle. That's great. Now blue circle. Put it here. Put it here. Now yellow circle. Put it here. That's great. Now count these circles. How many circles are these? कितने circles हैं? Just count. 1, 2, 3, 4. Great. Okay. There are 4 circles. Okay. The same. This is rectangle. कौन सी shape है ये? Rectangle. कौन सी? हुसैन कौन सी शेप है ये देखो look at me मैं इसके अंदर से देखूं आपको rectangle. Which color is this? Red. कौन सा कलर है? Okay. तो ये है red rectangle. Red rectangle. आपको चाहिए red rectangle? Okay. Put it on a table. Great. Now bring out yellow rectangle. Put it here. Great. Bring out इसको क्या ब्लू निकालो आपने हाथ में बोलो Hussein, bring out blue rectangle. Very good. Now here is a green rectangle. ग्रीन तो नहीं आपने भी निकाल लेते निकल आई बात हो गया ना आप इंस्ट्रक्शन में टेक आउट ब्लू रेक्टेंगल ग्रीन बाहर नहीं निकलनी चाहिए ना निकली है तो वापस जानी चाहिए तब प्रोसेस सही होगा Okay. Hussein, डू इट अगेन आप डालें दोनों वापस चलें Hussein, take out blue rectangle. Blue one. Where's blue rectangle? Take out blue rectangle. Blue rectangle. Hussein, where is rectangle? Where is blue rectangle? I said rectangle.
फाइन मिस, थैंक यू। कितने दिन से ले रही हैं इसको आप? सर इसका मेरे से फर्स्ट है, हैं? इसका मेरे से फर्स्ट है फर्स्ट है? जी क्यों? सर, क्योंकि मेरे स्टार्ट में मुझे डिफरेंट बच्चे मिले थे, अच्छा फिर जी। इसको नहीं इसका सेकेंड डे से मैंने कल भी लिया कल भी? और फिर कल मुझे मेरा स्केड्यूल चेंज हुआ। ठीक है। आप नई आई हैं, नई आई हैं, आपको कितने दिन हो गए आए हुए? सर मुझे इट्स वीक 1 वीक। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर MSc साइकोलॉजी। MSc साइकोलॉजी आपने की है। कब की है? सर मैंने 2018 में 3 साल पहले। उसके बाद आपने कोई जॉब शॉप की? सर जॉब मैंने टीचिंग की हुई है। टीचिंग की हुई है। अच्छा, फाइन। इसमें इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका डिसऑर्डर के हवाले से सर बताइए। इसका ये बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है। इसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। हाइपर एक्टिविटी इज द फीचर, डिसऑर्डर क्या है? सर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ना, अच्छा, ADHD हम कह रही जी, हैं। तो कुछ इसके ऑटिज्म के सिम्टम्स की वजह से इसके आई कॉन्टेक्ट इधर उधर दिखता है, कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स में इसके। ADHD भी है, ऑटिज्म भी है, ये मतलब हुआ डिसऑर्डर में। फाइन। इसको हम और बेहतर टर्म क्या कर सकते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ADHD भी आ रहा है, ADD भी आ रहा है, ऑटिस्टिक भी आ रहा है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का केस है। और इसके में आप जो इससे एक्टिविटीज़ कर रही हैं सेकेंड डे आज, तो आपको इसका कुछ कल आपने देखा, आपको पता लग गया हाइपर एक्टिव है, और भी आपको कुछ कल के सेशन में ऑब्जर्वेशन होती होंगी, कुछ आपने इसका प्लान देखा? मैंने सेम था मेरे पास, कल मुझे फाइल मिली थी उसमें, क्योंकि मेरे पास 12 बच्चे हैं, तो मैंने आपकी वो वीडियोस देखी जो मुझे फर्स्ट डे मिली थी, रात को जाकर मैंने 2 बच्चों की और वीडियोस देखी, तो सेम कि मैंने अभी वीडियो नहीं देखी, ना ही इसका प्लान मुझे याद है। आई डोंट नो कि कल इसका मुझे याद नहीं पड़ रहा कि 5 डेज़ का प्लान था या मेरे भाई ने प्लान नहीं। फाइल किधर है? फाइल मैम पात्मा ने लिखी, मैंने शायद कुछ चेंजेस करे, इसका फाइल मंगवाए हो? कौन सी फाइल? आपकी फाइल है वो? वो मिस एरिश की फाइल थी। सैलिस की फाइल मंगवाए? अच्छा, आप बेसिकली उस फाइल में देखें है कि नहीं है, पहले ये चीज़ चेक करें। अच्छा, दूसरा उसमें आप इसके साथ कर रही हैं डे 1 का निकल के गुजर गया, डे 2 आपको क्या टारगेट्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं आपके हुसैन के साथ इंटरेक्शन के दौरान में? सर बेसिक जो है ना, इसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी अटेंशन लेनी है ठीक हो और फिर गया। इसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। ठीक जब हो तक गया। इसकी टेंशन नहीं होगी हम अपने गोल्स को नहीं ले सकेंगे। हाइपर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना मेरे जो गोल्स हैं। ठीक है। हाइपर एक्टिविटी हो गई है, और सर मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जैसे इंस्ट्रक्शंस को भी बच्चा काफ़ी हद तक फॉलो करता है, लेकिन बिल्कुल हाइपर एक्टिविटी वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, जिससे ठीक हो गया। और और रेपिटेटिव भी है, रेपिटेटिव भी है, कुछ चीज़ें बार बार पकड़ता भी है, देखता भी तो एक आपका गोल और क्या होगा रेपिटेटिव के साथ के लिए? रेपिटेटिव के लिए क्या होगा गोल आपका? कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स खत्म हो इसके कम हो। उसके लिए कोई वर्ड यूज कर लें। रैंडम इज द वर्ड, गिविंग चेंजेस इज द वर्ड, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इज द वर्ड। या हम ये कुछ करेंगे तो ये रेपिटेटिवनेस वीक कम होगी। हो। अच्छा, फाइन। क्या आप टेंशन ले रही हैं इसकी? हाँ अटेंशन की कोशिश तो करी, लेकिन क्योंकि आज सेकंड डे है तो आई कॉन्टेक्ट थोड़ा थोड़ा आप नहीं ले रही? नहीं आप नहीं ले रही। जब आप उसको ये करा रही थी ये वाला रिकॉर्ड में देखिएगा दोबारा, ये आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी तरफ अटेंटिव नहीं है ये, वो उधर देख रहे हैं, आप उसको कह रही हैं ये करो ये करो, तो उस वक्त उसमें आपकी तरफ तवज्जो नहीं है। फिर आपने शेप का भी जब इसको कुछ किसी का कहा, रेड सर्कल आपने उसको आपने कहा से रेड सर्कल, अब उसको रेड सर्कल देखना चाहिए ना। और जब आप कह रही हैं उसको से रेड सर्कल, तो उसको आपकी तरफ देखना चाहिए, आपने सर्कल भी जब पकड़ा हुआ है उसको भी नज़र में आ जाएगा, लेकिन वो इधर देख रहा था कहीं और आप उसको कह रही हैं। मकसद मेरा कहने का कि आप बता तो सही रही हैं कि अटेंशन लेनी है, लेकिन आप ले नहीं रही है टेंशन उसकी। हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे?
चाहिए। कैसे रोकना चाहिए? इसको हाथ पकड़ के या तो हम कोई और चीज़ दे दें या इसको हम 4 ग्राम 6 फीट कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकें। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करवाएं, जैसे कि बहुत तेज़ तेज़ ज़्यादा तो हम इसका हाथ पकड़ के आए आज तक कैसे करवाएं? मेरा सवाल ये हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल कैसे करें, मेरा ये प्रश्न। इसको हाथ रोक देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए फिजिकली रोक दें आप कह रही हैं? अच्छा जी, 1 और इसकी टेंशन डाइवर्ट कर देनी चाहिए या फिर आप अटेंशन तो डाइवर्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आप दे रही हैं, उसने वही काम करना है, अब उससे डाइवर्ट तो नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ से मैंने ऐसे कहा है कि आप ब्लू उठाएं, हाँ जी। उनकी हाथ से फिजिकल इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है ठीक हो या फिर चीज़ों को आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया, मैं समझ गया। तो लेकिन डाइवर्ट नहीं कर सकते, जो आपने यूज़ किया ना वर्ड, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते, टेंशन उधर ही रहेगी। जब जो स्पेसिफिक काम हो रहा है टेंशन तो उधर ही रहेगी ना, टेंशन उधर से हटा देंगे तो प्रोसेस आपका ये वाला नहीं सही होगा। तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिजिकली आप हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। फिजिकली हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम इसको टास्क पे रखेंगे, जो टास्क हम इसको करवा रहे हैं इसी कंटिन्यूटी में हाइपर एक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, टास्क की नहीं। हाइपर एक्टिविटी को आपने फिजिकली रोक लिया, अब क्या करेंगे? इसकी आपकी बात की जैसे कंटिन्यूटी है, तो मैंने इसको कहा कि ग्रीन डालो तो जब तक कि किसी और काम की तरफ जाकर मैं इसको फ़ौरन दे दूँगी कि ये वाला डालो, तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। नहीं, तो आपका सवाल नहीं समझ। आपने एग्जाम्पल आपको क्या दूं? आपने रोटी पकानी है, आपने आटा गूंदना शुरू कर दिया, अब अगला काम आप क्या करेंगी ताकि वो रोटी पके? कुछ करेंगी ना उससे रिलेटेड, चूल्हा जलाएंगी, कुछ पेड़ा बनाएंगी, करेंगी। उसी का अभी हम हाइपर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपने फिजिकली उसको रोक लिया, रुक गई, अब क्या करेंगे? फिजिकली रोका, ये जाओ क्या आप, फिजिकली रोका, अब क्या करेंगे? उससे नेक्स्ट काम दे देंगे, इंस्ट्रक्शन से हम वो फिर तेजी से करेगा। हाइपर एक्टिविटी पे फिजिकली रोकना क्या है? फिजिकली जो आपने उसको रोका, ये क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इसके लिए आप? इट्स अ प्रॉम्प्ट, इट्स अ प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट है जिसमें आप उसकी हाइपर एक्टिविटी को रोक रहे हैं। फिजिकल प्रॉम्प्ट को फेड करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे, ताकि हाथ पकड़ के इसको अगर हमने हर दफा हाइपर एक्टिविटी से रोकना है बिल्कुल, देयर इज नो फन। आपने एक दफा उसको उससे दबा दिया, पकड़ दिया, दबा दिया ना आपने उसको, विल दिस बी कंटिन्यूड थ्रू आउट? नहीं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्टिंग्विश कर देंगे, Distinguish? आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे इस फॉर्म को ताकि इसकी वो कंट्रोल हो जाए। हाँ, कैसे करेंगे ये मैं जानना चाह रहा हूँ, सवाल फॉर मेरा ये है। एग्जाम्पल अगर मैंने आज का सेशन या आज मैंने इसको 10 टाइम्स फॉर्म दिए तो कल मैं वो 5 टाइम पे भी क्या चीज़? कल मैं उसको कम कर दूँगी अपने जो मैंने इसको हाथ रोका है, ऐसी कि इसका कम होगा, जैसे कम करने से मेरा अगर इसका प्रॉम्प्ट कम हुआ है तो इसकी हाइपर एक्टिविटी साथ कम होगा। तो वो कल के सेशन में इसका लेवल वो नहीं है कि इसको एक दिन लगातार हम प्रॉम्प्ट फिजिकल दें और अगले दिन फेड करें। इसको एक ही सेशन के अंदर फेड होना चाहिए। ओके, अगले दिन फिर करेगा, फिर फेड करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर टोटली खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको फेड करने के लिए फिजिकल प्रॉम्प्ट से कौन से प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा? पार्शियल फिजिकल पे, देन और फिर हमें विदाउट प्रॉम्प्ट इसकी एक्टिविटी करानी है, फेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग होगी। फुल फिजिकल, पार्शियल फिजिकल, वर्बल, ओके, वर्ड विजुअल, हायरार्की में नीचे आएंगे। पूरा दबा के पकड़ा हुआ है, छोड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, पार्शियल पे आ गया, हाँ हाथ नीचे, वर्बल पे आ गया, विजुअल पे आ गया, इशारा, जेस्चर, ये फेडिंग है। जो आप कह रही है कि उसको करके उस आगे उस पर जाके वो फेडिंग नहीं है, वो तो आपने बीच में छोड़ दिया। पार्शियल पे आके आपने एकदम स्टॉप कर दिया, ये पार्शियल पे नहीं रुकेगा। पार्शियल से जब आप जाने लगेंगे नीचे फर्दर, अब आपको पार्शियल के साथ वर्बल भी अटैच करना है। पार्शियल रोक भी रहे हैं और साथ कह रहे हैं हाथ नीचे, हाथ नीचे। अगली अटेम्प्ट में आप क्या करेंगे, फिजिकल वाला पार्शियल जो है, ये फिजिकल जो है वो खत्म कर देंगे और वर्बल रख लेंगे। इसके दोनों पहले इकट्ठे थे, ये वाला फेड हो गया, ये रह गया, अब ये काम करना शुरू कर देगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर फेडिंग द थिंग। अच्छा, अगर मेरी कंप्लायंस अच्छी होगी ना मिस, कंप्लायंस पेयरिंग मेरी
इसकी ओबीडियंस मेरे साथ, मेरा इसका रिलेशन वर्किंग का बॉन्ड अगर वो अच्छा होगा तो मुझे ना पार्शल की उसकी पड़ेगी ना फिर किसी प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं। ये समझदार है माशाल्लाह, ये खुद ही रोकेगा अपने आप। अगर मैंने इसको बाउंड्रीज पे मैं ले आया हूँ कि ये बाउंड्री है, इससे उधर नहीं जाना। अगर मैंने इसको ये 1 दिन 2 दिन में सिखा दिया अपने इंटरेक्शन के अंदर, शुरू से ही मैंने उसको ये सिखा दिया कि ये बाउंड्री है, इससे इधर तक बाउंड्री तक तो तुम आ सकते हो, इससे उधर नहीं जाना तुम्हें। अगर ये मेरी कंप्लायंस में आ गया तो मुझे इसको हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए किसी प्रॉम्प्ट की, वर्बल की शायद जरूरत पड़ सके या जेस्चरल की, विजुअल की, दूसरे फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो बच्चा नहीं है जिसको हम फिजिकली रोकें। फिजिकली आप रोक रही थी, वो नहीं रुक रहा था इसके ऊपर, उसका हाथ फिर भी तेजी से जा रहा था, उसको आपने फेड नहीं किया। ये काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 1 से लेकर 10 तक में उसको आपने प्रॉम्प्ट दिया लगातार, ठीक है। अब वो देख भी उधर रहा है और आप उसको करा रही हैं, वो आप जब देख भी रहे आप गिनती बोल रही हैं, गलत है। आपका गोल काउंटिंग तो है ही नहीं, काउंटिंग सिखाना तो नहीं आपका गोल। इस वक्त आपका गोल आपने बता दिया अटेंशन है, अटेंशन ही नहीं है, वो काउंटिंग कर रहे हैं तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ एफर्ट। आप टाइम ज़ाया कर रही हैं, वो जो आपका टारगेट है वो आप अचीव नहीं करने की कोशिश कर रही हैं। आप उसको गिनती जरूर सुना रही हैं, आप उसको टच से उधर जरूर करा रही हैं, उसको विजुअल स्टिमुलेशन क्या मिल रही है, उस चीज़ की मिल रही है जो हम वो देख रहे हैं। टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्या मिल रही है, जो उसको कर रहा है। अटेंशन नहीं है। अटेंशन होगी जब आप मेरी तरफ देख रही हैं, आप हाथ पाँव आपके स्टैटिक हैं, आप चीज़ों को छेड़ नहीं रही, यू आर फुली अटेंटिव टू मी। अटेंशन स्पैन भी बढ़ रहा है, इतनी देर तक आप मुझ साथ मुसलसल कांटेक्ट में, बीच में आई कांटेक्ट देती हैं, छोड़ती हैं, आई कांटेक्ट देती हैं, छोड़ती हैं। मैं भी ये कर आई कांटेक्ट देता हूँ, जब देखता हूँ फिर आई कांटेक्ट। दिस इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द अटेंशन। मुसलसल अटेंशन दे रहे हैं, इसकी मुसलसल अटेंशन कैसे ली? वो नहीं आपने अटेंशन, आपका गोल है, आपने कहा हाइपर एक्टिविटी का मैंने बता दिया कि वो आप फिजिकली रोक रही हैं, लेकिन उसको आप फीडिंग नहीं कर रही हैं, जबकि इसकी फिजिकल की ज़रूरत कोई नहीं मेरे ख्याल में। और फीडिंग उसका, अगर फिजिकल आप नए मेंबर हैं, आपके साथ बॉन्डिंग नहीं भी है बिल्कुल उस तरह की बनी हुई, तो आपको 1 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर उस पर ले आना चाहिए कि आपकी कंप्लाइंस में आए, जुबानी माने, समझे, जेस्चर दें आप उसको, हाँ उसको समझ जाए कि मैं आप क्या कह रहा हूँ, देन इट इज़ ओके। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को कैसे करें? आपने कहा एक गोल ये भी आपका सर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, एक तो सबसे पहले यही आपकी बात है कि कंप्लाइंस अगर आपका बंद हो गया तो बच्चा आपकी बात मानेगा, ठीक हो गया। और उसको हम बार बार अपनी बात बताएंगे। अगर वो मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा तो मुझे उसको अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करानी है। कैसे? अगर मैंने उसे छोड़ दिया, जैसे भी करवाएं, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने बार बार कहा कि पिकअप रेड वाइन, पिकअप रेड, अगर नहीं करेगा तो मैं उसको खुद उठा के रेड करूँगी। फिर पार्ट फॉर्म पर ही बात की आ जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना है। आप जो जुबानी बता रही हैं और जो आपने किया है उसमें फ़र्क है। आपने रिकॉर्ड में देखिएगा वीडियो में, आपने कहा टच ब्लू बीड्स, उसने टच नहीं किया, आपने इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कराई और आप अगली इंस्ट्रक्शन पे चली गई। क्या आप सही रही हैं कि जो कहूँगी उसको पूरा करवाऊंगी, करवा आप पूरा नहीं रही हैं। डिफरेंस, जब तक आपको करवाएंगी नहीं जो कह रही हैं, समझ आपको है इस चीज़ की, मुझे ये ज़्यादा हो रहा है, बट टिल द टाइम यू फेल टू इम्प्लीमेंट दैट, बच्चे का नुकसान है, आपका काम नहीं हुआ अभी बनेगा। रेपिटेशन में क्या करें? आपने कहा रैंडम, आपने कहा, हमने बात की कि रैंडम हो सकता है, चेंजेस देना हो सकता है, डिफरेंट इस तरह से देना हो सकता है। आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस एक्टिविटी को कराते हुए, आपने सारी ये शेप्स निकलवाई एक दफ़ा में, फिर आप अगली पे गई तो रैंडम नहीं हुआ बल्कि स्क्वायर रिपीट हुआ 4 दफ़ा। मेरे पास ऑप्शन ये है, मैं एक दफ़ा ये कहता हूँ, फिर 2 ये निकलवाता हूँ, 1 ये निकलवाता हूँ, 4 ये निकलवाता हूँ, अब रैंडम है। प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेस करवाऊंगा। प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन दी है, अटेंशन लेके प्रोसेस वो कर दे तो वेरी फाइन। द मेथड इज, आपने अटेंशन लेके इंस्ट्रक्शन दी, उसने प्रोसेस कर लिया, आपने टेक आउट 2 सर्कल्स, उसने 2 निकाल दिए तो ठीक हो गया, आई विल अप्रिशिएट इट। अगर नहीं किया, 1 निकाला या ये निकाला या निकाला ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, अटेंशन दोबारा लूँगा इसको दोबारा स्टिमुलेशन दूंगा, टेक आउट 2 सर्कल्स। अब इसको यहाँ से क्यू दूंगा, इन 2 के को मैं ऊपर कर दूंगा, ये मिनिमम क्यू है, ये मिनिमम ये होगा कि मैं इशारा करूँ, ये मिनिमम हो गया। उस पर नहीं होता, मैं फिजिकल में इसको ये
विजुअल में ये इतना ऊपर कर दूंगा कि उसको इशारा मिल जाए कि 2 उठाने हैं मैंने। ये नहीं करेगा तो मैं इसका हाथ ला के 2 उठवा लूँगा। ये करेगा मैं इसको यहाँ पे उंगली रख लूँगा ताकि निकले ही 2। आप कहती हैं एक ले 1 बाय 1 लेके आना है, वो इधर से लाता है, उंगली इधर चल जाती है, जान के हाइपर एक्टिविटी में या लैक ऑफ प्रोसेसिंग जिस भी वजह से चल जाती है, आप उसको पकड़ के चला, आप इसको रोक लें। अगला इधर ले आए, एक ही जाएगा, अगला तो जाएगा ही नहीं। सो देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग द थिंग जिसमें क्या उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो और वो उसमें बेहतर हो। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके इंटरेक्शन के अंदर हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की, आप कर रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं लेकिन आप उसको कर नहीं पा रही हैं। और क्या ऑब्जर्व किया आपने इसके इंटरेक्शन के अंदर? एक्टोलियस ने किया, वर्बल रेपिटेशन की, वो आपने नहीं नोट किया? जो आपने बोला उसने वही बोला। हाँ क्या होता है मिस? आई एम एल्डर टू यू। हाँ क्या होता है? ये बात ठीक है। अच्छा, एक्टोलियस ने कि मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ज़हन में रखूंगा, ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। वो ये तो रिपीट कर रहा है वही जो मैं कह रहा हूँ, समझ आ रही नहीं आ रही, इसको मैं देखूंगा ज़्यादा। प्रोसेसिंग इसकी कैसी है वो हमने देख ली। अब वो जो फौरन बोल रहा है मैं देखूंगा इसको सही समझ भी आई है कि नहीं आई है। दैट इफ इट इज ओके विद दैट कि प्रोसेस भी से सही कर दिया, फिर वो वर्बल रेपिटेशन सही की उसने रिपीट कर दिया फाइन। लेकिन मैं फिर भी ख्याल रखूंगा कि अगर ये हर बात को रिपीट करेगा तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर में चल जाएगा वर्बल रेपिटेशन। अब मैं उसको भी चेंज करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपका इसके साथ ज़्यादा इंग्लिश था, मिक्सचर होना चाहिए। जो आखिर में वाले पार्ट में वीडियो में आपने उस तरफ कन्वर्ट कर दिया, लेकिन शुरू का पार्ट सारा अंग्रेजी वाला माहौल था। इज नॉट अ गोरा, नीदर विल ही गो टू एन एनवायरमेंट जहाँ पे ऐसे अंग्रेजी ही बोलूँगी। बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है इसकी, तब आपको समझ आएगी कि इसके साथ मीडियम और लैंग्वेज कैसा रखें। मिक्सचर रखें, स्कूलिंग में अंग्रेजी से अंग्रेजी आएगी, इसकी थोड़ी बिलोंग ये इंटीरियर सेंस आप पंजाब साइड से कैसे करता है, तो इसका वहाँ पे किस तरह का एनवायरमेंट, होम एनवायरमेंट इसका किस तरह का है, किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज में इसके साथ बोलूँगा। इट शुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ क्या है, विच यूजिंग कलर्स नेम इंग्लिश में आएंगे, बॉल आएगा लाइक दैट, इस तरह के वर्ड इंग्लिश में यूज होगा, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज मेरा उसके साथ मिक्सचर होगा एंड मोर फोकस टुवर्ड्स उर्दू साइड। यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा था, ये स्क्वायर जिसने रखे, ग्रीन इधर येलो इधर ब्लू, इस तरह से उसके ऊपर उसने ट्रायंगल लगाई, एक ट्रायंगल इधर लगा दिया, सर्कल इसे 2 इधर रखे, तीसरा इधर रखा था, आपने कहा इधर रख। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आपका है, टास्क है, गोल है। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हैं, उसको इनहेंस करने की, बढ़ाने की, उसको अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रही हैं। कैसे? आप इसको कहें रेड सर्कल को फलान वर्बल इंस्ट्रक्शन दें, ब्लू स्क्वायर के साथ रखो, येलो स्क्वायर के ऊपर रखो। नाउ ही विल प्रोसेस कि आपने क्या कहा है। अगर वो प्रोसेस कर देगा तो आप कहेंगे वेरी गुड, शाबाश, नाइस डूइंग हुसैन। अगर वो प्रोसेस नहीं करेगा, अब आप क्या करेंगे, दोबारा इसको इंस्ट्रक्शन लिसन हुसैन, ब्लू सर्कल ऑन येलो स्क्वायर। अब इशारा कर देंगी, विजुअल क्यों दे देंगी, उस पर नहीं चलेगा, फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ बता देंगी। वन वे और द अदर यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड द एंड प्रोसेस द थिंग एज यू हैव सेड। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं करें, वो खुद अपनी मर्जी से रख रहा है, दिस इज रॉन्ग। इस इंटरेक्शन में जो मेरा बच्चे के साथ होता है या आपका, इसमें 100% हमने उसको देना है। अगर वो अपनी मर्जी से शेयर कर रहा है, अब मैं कल भी ध्यान रखूंगा, मैं इसको समटाइम जान के अपॉर्चुनिटी दूंगा, खुद दोबारा शेप्स को रखो बाहर निकाल के टेबल पे। अब मैं देखूंगा कि क्या ये वही पैटर्न नहीं बना रहा है जो उसने पहले बनाया था, या उसी तरह का मिलता जुलता। इफ इट डज सो तो ये रेपिटेशन है। अब मैं नोट रखूंगा ये पॉइंट्स। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मैचिंग की। मैचिंग क्या होती है? जैसे कलर मैचिंग होगी, यहाँ पे शेप मैचिंग होगी। कलर में आपके पास सेम चीज़ें 4-4 मिल रही हैं, आपको कलर्स भी सेम मिल रहे हैं 4-4। उस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया इंटरेक्शन में। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इट रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट जो है मैचिंग का। मैं इसको कहता हूँ रेड को रेड पे रखो, स्क्वायर को स्क्वायर पे रखो, मिक्स। मैं इसको कलर मैचिंग में क्या कहूँगा, मैं शेप डिफरेंट होगी,
कलर सेम होगा, मैं वो भी करा सकता हूँ। शेप में मैचिंग में क्या कराऊंगा, सेम शेप्स को इकट्ठा रखवाऊंगा। इसके सामने इधर 4 रखी हैं, जो निकालता है ट्राइंगल, ये ऐसे पड़ी हैं, तो मैं इसको जब ये ट्राइंगल निकालता है तो मैं कहूँगा पुट इट ऑन द ट्राइंगल, अब उसे ट्राइंगल पे रख दूँ, ठीक है। अब ये निकालता है, मैं कहता हूँ मैच कलर, अब ये देखेगा येलो कलर, ये भी इधर ही आएगा। मैं कहता हूँ मैच शेप, इधर आएगा। ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर रहा हूँ मैचिंग की इस एक्टिविटी के दौरान, करा तो मैं रहा ही हूँ। मैं कहूँगा टेक आउट दिस शेप, स्क्वायर ऑफ दिस कलर, अब उसका हाथ इधर आना चाहिए, विजुअल परसेप्शन पे जाए और इससे हाथ लेके आए, देन इट्स ओके। वेट। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने वहाँ पे ले सकती हैं, जो कि आपने उसमें मिस कर रही हैं, क्योंकि वो इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है, प्रोसेसिंग इसकी इतनी लेवल की है कि ये चीज़ें ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कर सकते, कोई दूसरा बच्चा हो सकता है वो ना करे, इसका लेवल जो है वो इस तरह की चीज़ों के लिए है। जो आपको लास्ट में मैंने कहा कि येलो निकाले अपना, यहाँ से 2 थे तो मैंने कहा वो निकाले, उसमें प्रोसेस गलत हो गया। अब उसको क्या करते हैं, उसको कॉग्निटिव एनालिसिस के जरिए उसको क्या करना चाहिए था कि ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा ऐसे कि पहले इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा, तो अब ये निकल आया, वो नहीं निकालना, प्रोसेसिंग है ना, उसको एनालाइज करना चाहिए। नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, प्रॉम्प्ट के जरिए सिखा दूंगा, विजुअल मतलब जो सा प्रॉम्प्ट मैंने उसको देना है उस प्रॉम्प्ट से मैं उसको सिखा दूंगा कि ये नीचे वाली से, इसमें से भी मैं हो सकता है इसको कहूँ ग्रीन निकाल दें, प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी। तो ये वीकनेसेस हैं आपके इंटरेक्शन के अंदर, जो कि आप इम्प्रूव कर सकती हैं। और कंप्लायंस इज द मेन थिंग। कंप्लायंस जितनी अच्छी होगी उतना ये इसको प्रोसेस करना भी आता है, अटेंशन देनी भी आती है, सब कुछ करना आता है। अब यही चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको करा के दिखा दूँ तो दैट के आपको समझ आ सके कि मैंने जो कहा है उसका क्या मतलब है। आप इधर आ जाए, मुझे एक चीज़ और भी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। मुझे कंप्लाइंस का ना मतलब स्टार्ट से जब मैं आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वाकई मेरी कंप्लाइंस काफ़ी वीक है। आई नीड सम स्ट्रैटेजी जिससे आप अच्छी कंप्लाइंस बिल्ड कर सकें। कंप्लायंस बनती है बाउंड्रीज देने से, मैंने आपको बताया उधर बाउंड्री, बैठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं, खड़े नहीं होना, मैंने तो कहा बैठ रहे हैं। दूसरा होता है बाय इंश्योरिंग, जो आपने कहा है वो पूरा करवा दें, रोता धोता बिहेवियर जो भी शो करे पूरा ज़रूर करवाएं, पूरा कराए बगैर आगे नहीं जाएं। आपने कहा हाथ नीचे रखो तो हाथ नीचे रहना चाहिए, जैसे ऊपर करता है नीचे करें उसको, और उसको ऐसे करके देखें भी कि ये क्या कर रहे हो, ये बाउंड्री है ना, ये मैं बाउंड्री दे रहा हूँ। मैंने कहा है हाथ नीचे रखो तो तुम हाथ ऊपर कैसे लेके जा रहे हो। अब मेरी टोन चेंज होगी, मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होगी, मेरा बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, दैट विल क्रिएट द बाउंड्री कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। फाइन, आ जाए अपॉइंटमेंट।